हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर वीडियो सीरीज ऑफ जरा सी केमिस्ट्री। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी स्टार्ट दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोफिल. Electro means a pair of electron and fill means to love or to attract. That means these are the species which attracts a pair of electron. And if a species is able to attract or accept a pair of electron, that means it must have at least one vacant orbital in its outermost shell, or it must contain a positive charge. Either a vacant orbital or a positive charge should be there. If it is there, then such species is said to be electrophile as it accepts a pair of electron. And as electrophile accepts the pair of electron, they are considered as Lewis acid. तो सभी इलेक्ट्रोफिल लुईस एसिड होते हैं, सभी न्यूक्लियोफिल लुईस बेस कहे जाएंगे, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिल दैट मीन्स वो स्पीसी जो इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्सेप्ट करने वाली है। दैट मीन्स इट कैन हैव आइदर पॉजिटिव चार्ज और इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन वैकेंट ऑर्बिटल. Okay, so let us start the electrophilic substitution for benzene. There are basically five electrophilic substitution reactions in case of benzene and toluene also. Nitration, sulfonation, halogenation, that means chlorination or bromination, Friedel-Crafts alkylation, and acylation. So these are the electrophilic substitution reaction. Let us start with halogenation. That is very simple reaction. This is our benzene ring, which is electron rich because it is having a pi electron cloud with it. And suppose we want to do halogenation, so for that we have to take any halogen, dihalogen, and here a catalyst is required, that is anhydrous FeCl3. Now this FeCl3 is having a vacant orbital, vacant d orbital. Therefore it is able to accept a pair of electron. In that condition we can have heterolytic fission in chlorine. So first of all, reaction starts with chlorine and FeCl. Suppose this is the mechanism. Chlorine, when react with FeCl3, then one Cl minus will attach with FeCl3, that means Fe plus 3. So it will give us FeCl3 and Cl, that is minus. So FeCl4, and we will have one Cl plus. This is our electrophile. Now this electrophile which lacks a pair of electron, उसे एक इलेक्ट्रॉन की पेयर चाहिए, तो वो अब कुछ ऐसी साइट पर अपनी नजर रखेगा जहां से उसे इलेक्ट्रॉन इजीली मिल पाए. यहाँ पर बेंजीन रिंग है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, सभी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम रहती है क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है. Therefore this chlorine will attack any of this carbon of benzene, but all carbons of benzene are having hydrogen with it. तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एक हाइड्रोजन वाली बॉन्डिंग पेयर ये कार्बन ले लेगा, जिससे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ हमारा इलेक्ट्रोफिल Cl+ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके. तो इस तरह से अगर रिएक्शन हम लोग लिखे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. यहां से एक हाइड्रोजन जा रहा है, सपोज मैं यहाँ पर हाइड्रोजन भी बता रहा हूं, जिसकी पेयर ये कार्बन ले लेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है और यहाँ पर हमारा क्लोरीन जुड़ जाता है और H+ के फॉर्म में यहाँ से रिमूव होता है. अब तीसरा स्टेप क्या होगा, ये तो हमारा कैटालिस्ट था. रिएक्शन के बाद में हमें ये ऐसे ही वापस भी मिल जाना चाहिए.
तो प्रोडक्ट तो हमारी बन गई क्लोरोबेंजीन, बट व्हाट इज बाय प्रोडक्ट? So in that manner, this H plus will now react with FeCl4, and then this Cl minus will give its pair of electron to H plus, and we will have HCl as a byproduct, and this is our catalyst. रिएक्शन के बाद में कैटालिस्ट हमें फिर से प्राप्त हो गया। तो ये रिएक्शन कुछ हाई टेम्परेचर रिक्वायर होगा इसके लिए। तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर बेंजीन। क्लोरीनेशन हमने किया, क्लोरीन में से पहले क्लोरीन इलेक्ट्रोफिल बनता है, वो इलेक्ट्रोफिल बेंजीन के कोई भी एक कार्बन पर अटैक करके वहां से इलेक्ट्रॉन की पेयर लेगा और उसके साथ जुड़कर क्लोरोबेंजीन बनाएगा। वहां से निकलने वाला हाइड्रोजन FeCl4 माइनस में से क्लोरीन को एक्सेप्ट करके HCl बनाकर बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से हमें प्राप्त होगा और कैटालिस्ट हमें वापस उसी फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये था एक एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, particularly chlorination. We will see one more reaction, that is nitration. तो फटाफट से वो भी देख लेते हैं। इसको मैं अब मिटा दे रहा हूँ। नाइट्रेशन देखने के लिए सेम प्रोसीजर होगी उसमें भी, लेकिन रिएक्टेंट कुछ बदल जाएंगे, कैटालिस्ट भी बदलेगा। सपोज दिस इज अवर बेंजीन एंड वी वांट टू डू नाइट्रेशन। जब भी आप नाइट्रेशन करना चाहो तो रिएक्टेंट के रूप में आपको लेना होगा नाइट्रिक एसिड HNO3 और कैटालिस्ट हमेशा लेना होगा H2SO4 एज अ कैटालिस्ट। सो H2SO4 यहाँ पर कैटालिस्ट है, तो वो तो हमें रिएक्शन के आखिर में वापस मिल ही जाना चाहिए। तो किस तरह से रिएक्शन होगा, चलिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सो पहले हमें इलेक्ट्रोफिल निकालना होगा। तो ये दोनों नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे एक्वियस सॉल्यूशन में, तो हमें इलेक्ट्रोफिल प्राप्त होगा। किस तरह से, चलिए देखते हैं। दिस इज HNO3 when it reacts with H2SO4 then ultimately we will have this HNO3 will be divided in two different ions. One is OH minus and the other is NO2 plus. This is HNO3. So this is divided into OH minus and NO2 plus. This NO2 plus is our electrophile, and from this sulfuric acid which is acting as an acid, that means it will provide H plus. So that H plus will react with OH minus and ultimately we will have H2O, and the other species will be one H is removed as H plus, then we will have HSO4 minus 1. So the other species is HSO4 minus 1. You can call these two species as H2. Now this is NO2 plus, which is an electrophile. It will attack on benzene ring. So same thing can be applied over here also. यहाँ पर हाइड्रोजन था, इसकी पेयर ये लेकर NO2 प्लस को दे देगा, जिसके कारण NO2 प्लस यहाँ से जुड़ जाएगा और हमें मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। दिस इज अवर मेन प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन। बट बाय प्रोडक्ट क्या होगा, अब देख ही रहे हैं यहाँ पर OH और ये H जुड़कर ये H प्लस हमें प्राप्त हुआ है अभी सल्फ्यूरिक एसिड में से, लेकिन यहाँ से भी एक H प्लस तो निकला ही है। सपोज यहाँ से निकला हुआ H प्लस, यहाँ से जो H प्लस निकलता है वो H प्लस ये HSO4 माइनस के साथ जुड़कर बना डालेगा H2SO4 जो कि कैटालिस्ट था, हमें रिएक्शन के अंत में फिर से मिल गया और हमारी बाय प्रोडक्ट हमें मिली H2। तो अगर बेंजीन का नाइट्रेशन किया जाए तो सबसे पहले नाइट्रिक एसिड में से हमें इलेक्ट्रोफिल NO2 प्लस ग्रुप मिलेगा, जो इलेक्ट्रोफिल बेंजीन पर अटैक करके अंत में नाइट्रोबेंजीन बनाएगा
यहां से निकला हुआ H प्लस ये HSO4 माइनस आयन के साथ जुड़कर फिर से H2SO4 बना देगा, जो कि कैटालिस्ट था। रिएक्शन के अंत में ऐसे ही मिल जाना चाहिए था, सो मिल गया। और ये OH माइनस एंड H प्लस दे विल अटैच विद ईच अदर टू गिव अस H2। तो ये बाई प्रोडक्ट तो पहले स्टेप में ही हमें मिल जाता है, मेन प्रोडक्ट हमें दूसरे स्टेप में मिलता है। तो ये था मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर हम बेंजीन का सल्फोनेशन करें, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन करें, तो भी इसी तरह से उसकी भी रिएक्शन होगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पर बनाने वाले हैं, उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करें, और अगर आप नए हो और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हुआ हमारा चैनल तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। ओके, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम।